حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش کا امن بھارت کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں تشدد پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سخت مذمت، اقلیتوں کے تحفظ پر دیا زور۔ تلنگانہ اسمبلی ونٹر سیشن کا آغاز، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا سیاسی شائستگی کا مظاہرہ، کے سی آر سے ملاقات کر کے قائم کی جمہوری اقدار کی مثال، اجلاس 2 جنوری تک ملتوی۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس رکن اسمبلی ماجد حسین نے ڈاکٹروں کی کمی دور کرنے اور بچوں کے لیے ایم آر آئی مشین فوری فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ جعفر حسین نے رمضان سے قبل صفائی، نکاسی، آب اور سینیٹائزیشن کے مسائل فوری حل کرنے پر دیا زور۔ چائنیز مانجا فروخت کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات، اطلاع دینے والوں کے لیے 5000 روپے انعام، دانم ناگیندر نے اختیار کیا سخت موقف۔ کرسمس و تعطیلات کے دوران زو پارک میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے زو کا دورہ کر کے جانوروں کا کیا مشاہدہ۔ زو پارک کو مزید تعلیمی و تفریحی مرکز بنانے اقدامات کا حکام کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بنگلہ دیش کے حالات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے دیپو چندر داس اور امرت منڈل کے ساتھ پیش آئے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مجلس پارٹی اس معاملے میں حکومت ہند کی جانب سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بنگلہ دیش کی بنیاد سیکولر بنگالی قوم پرستی پر رکھی گئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں غیر مسلم اقلیتیں آباد ہیں اور ان کے تحفظ کی ذمہ داری وہاں کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ محمد یونس اقلیتوں کے حقوق اور سلامتی کو یقینی بنائیں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کا استحکام بھارت بالخصوص شمال مشرقی ریاستوں کی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ عوامی تحریک اور آئندہ فروری میں متوقع انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ ISI اور چین جیسی بھارت مخالف طاقتوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ کی تیسری قانون ساز اسمبلی کے 7ویں اجلاس کا آج باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسمبلی کمپلیکس پہنچنے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا وزراء، چیف سیکرٹری اور اسمبلی و کونسل کے عہدیداروں نے استقبال کیا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر اعلیٰ نے سیاسی شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف اور BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی نشست تک جا کر ان سے خیر سگالی ملاقات کی۔ پہلے دن کی کارروائی کا آغاز سابق ارکان اسمبلی رام ریڈی، دامودر ریڈی اور کونڈا لکشما ریڈی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور تعزیتی قراردادوں کی منظوری سے ہوا، جس کے بعد ایوان میں چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں اسپیکر کڈیم پرساد نے 0 آور کی کارروائی لی، جس کے بعد اجلاس کو 2 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اس اجلاس کے دوران GHMC حدود میں توسیع، میونسپلٹیوں کے انضمام، مقامی انتخابات میں 2 بچوں کی شرط کے خاتمے، تلنگانہ GST قانون میں ترمیم اور سرکاری ملازمین سے متعلق پالیسی فیصلوں پر قانون سازی متوقع ہے، جبکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس کے شیڈول کو حتمی شکل دی گئی۔ The House is urgent to meet again at 10 a.m. on Thursday, the 2nd January 2026. بھارت راشٹریہ سمیتی کے سربراہ اور قائد حزب اختلاف کے چندر شیکھر راؤ پیر کے روز تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے، جو 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد ان کی پہلی باقاعدہ حاضری اور مباحثے میں شرکت ہے۔ اسمبلی پہنچنے پر BRS کے ارکان اسمبلی اور کونسلروں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، جس کے بعد KCR نے BRS رجسٹریچر پارٹی آفس میں حاضری رجسٹر پر دستخط کیے۔
اجلاس کے آغاز پر ایک خوشگوار منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود چل کر قائد حزب اختلاف KCR سے ملاقات کی، ان سے مصافحہ کیا اور ان کی خیرت دریافت کی، جسے جمہوری اقتدار اور سیاسی شائستگی کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دوران کانگریس کے وزراء اور ارکان اسمبلی بھی KCR سے ملنے پہنچے، تاہم تعزیتی قراردادوں کے بعد KCR کچھ دیر ایوان میں بیٹھنے کے بعد اسمبلی سے روانہ ہوں گے اور نندی نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ چلے گئے۔ KCR کی اسمبلی میں موجودگی سے BRS ارکان میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی احاطے میں واقع تلنگانہ قانون ساز کونسل کی عمارت میں جاری تزائین و مرمت اور بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی اور تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر کڈیم پرساد کمار بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کونسل کے اجلاس ہال میں جاری مرمتی اور تعمیراتی کاموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور متعلقہ عہدیداروں کو کام کے معیار، بروقت تکمیل اور بہتر سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہدایات دی۔ حکام کے مطابق اس معائنے کا مقصد قانون ساز کونسل کی عمارت کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنانا اور آئندہ اجلاسوں کے لیے موزوں اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہے۔ AIMIM نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین نے تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران صحت اور تعلیم سے متعلق اہم مسائل اٹھائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ MNJ کینسر ہاسپٹل، نیلوفر چلڈرن ہاسپٹل، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل اور نامپلی ایریا ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی شدید کمی کو فوری طور پر دور کیا جائے تاکہ غریب، مزدور اور کمزور طبقات کو بروقت اور معیاری طبی سہولتیں فراہم ہو سکیں۔ ماجد حسین نے خاص طور پر نیلوفر ہاسپٹل میں بچوں کے لیے MRI مشین کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 2 برس قبل اس سلسلے میں یقین دہانی کرائی گئی تھی مگر تاحال اس پر عمل نہیں ہوا، لہٰذا اب حکومت فوری اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ووکیشنل جونیئر کالج کی ری ڈیولپمنٹ کا بھی مطالبہ کیا تاکہ تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسپیکر صاحب، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے زیرو اوور میں مجھے موقع دیا۔ میں آپ کے ذریعے سے حکومت کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ نامپلی حلقے میں میجر گورنمنٹ ہاسپٹل سے جو ریاست تلنگانہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل ہیں، ایک ہے MNJ کینسر ہاسپٹل، دوسرا ہے نیلوفر چلڈرنس ہاسپٹل، تیسرا ہے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل اور ایک سب سے بہتر پرفارمنگ نامپلی وارڈ ہاسپٹل ہے صاحب جس کے اوپر حکومت کی نظر ہونا سخت ضروری ہے۔ نامپلی ایریا ہاسپٹل میں قریباً 500 سے زائد آؤٹ پیشنٹس ہر روز آتے ہیں اور اس کا آؤٹ پیشنٹ وارڈ تقریباً پورا کنجسٹڈ ہو چکا ہے اور وہاں پہ جو غریب آتا ہے ان کے لیے کئی دشواریاں وہاں پہ ہو رہی ہیں اور خاص طور سے وہاں پہ جو ڈاکٹرز کے پوسٹ ہیں، چاہے وہ نامپلی ایریا ہاسپٹل رہی ہے یا نیلوفر رہی ہے یا سروجنی اور MNJ، کئی ڈاکٹرز کے پوسٹ ویکنٹ ہے اور جو پریزنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے اتنے زیادہ نمبرز کو کیٹر کرنے کے لیے۔ میری آپ سے درخواست ہے صاحب کہ یہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جو تلنگانہ کے زیادہ تر غریبوں کے جو میجر بیماریاں ہیں اور جو بچوں کا علاج ہے یہاں پہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان ڈاکٹرز کا پریشر کم کرنا ہے اور وہاں کے غریبوں کے ساتھ ٹھہرنا ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش یہ ہے صاحب کہ انچارج منسٹر صاحب کے ساتھ، ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ ایک ریویو میٹنگ ان ہاسپٹلز کے لیے رکھی جائے۔ وہاں پر صاحب ایک ICU بھی ہونا بے انتہا ضروری ہے نامپلی ایریا ہاسپٹل میں۔ اگر کوئی سیریس کوئی پیشنٹ یا خواتین وہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر اس حالت میں وہاں سے عثمانیہ بھیجا جا رہا ہے جو ان غریب عورتوں کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے اور آپ اور ہم یہاں پہ اس لیے ہے کہ ان کو سہولت دے سکیں۔ ان کی سہولت اس میں ہے صاحب کہ ہم وہاں پہ فوری طور پہ ایک ICU بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیلوفر چلڈرنس ہاسپٹل جو ہندوستان کا سب سے بڑا بچوں کا ہاسپٹل ہے، افسوس کی بات یہ ہے صاحب 2 سال پہلے اسی زیرو اوور میں نے یہاں پہ ایک مدعا اٹھایا تھا کہ وہاں پہ ایک MRI کی سخت ضرورت ہے اور مجھے یہاں پہ توقع دیا گیا تھا ہو جائے گا۔ 2 سال ہو گئے، نہیں ہوا سر۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو MNJ کینسر ہاسپٹل میں جا کر MRI کرانا پڑ رہا ہے، ہمیں امیڈیٹ طور پہ نیلوفر چلڈرنس ہاسپٹل میں MRI لانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ بس ایک چھوٹی ہٹ کے بعد صاحب یہاں میرے نامپلی حلقے میں ایک ووکیشنل جونیئر کالج جو بازار گھاٹ میں ہے سر یہ چیف منسٹر صاحب کے انڈر میں آتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ
पिछली बार बारिशों में हर एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये पर्टिकुलर कॉलेज पूरा डिलैबरेट कंडीशन में है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी जिंदगियों को खतरा है। सर उतना बड़ा इश्तिहारात पूरे अखबारात में आए, तेलुगु मीडिया में आए, मगर अफसोस की बात है साहब हमारे लिए कोई ओहदेदार वहां पर आगे बढ़कर उसके लिए क्या इक़दाम लेना चाहिए, किस तरीके से जल्दी उसका सैंक्शन लेते हुए वहां पे एक तामीराती काम शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर इक़दाम नहीं ले रहे सर। खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा, कोई ऑफिसर बदनाम नहीं होगा सर, कोई ऑफिसर पे उंगली नहीं उठेगी सर। उंगली उठेगी तो ऑनरेबल उनके ऊपर उठेगी जिनके उसमें ये पोर्टफोलियो है सर, और जो हम नहीं चाहते सर, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं साहब ये मुद्दों पे सीरियसली तौर पे नोट लिया जाए, एक रिव्यू मीटिंग इंचार्ज मिनिस्टर साहब के जरिए से इन तीनों चारों हॉस्पिटल की बुलाई जाए, वोकेशनल जूनियर कॉलेज को इमीडिएट सीरियस तौर पे लेते हुए वहां की जो सैंक्शन अमाउंट, मेरे हिसाब से साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2 बार वो फाइल आई वोकेशनल जूनियर कॉलेज की, अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो अपने गरीब बच्चे जो माशी तौर पे कमजोर है, जो पैसों की वजह से अच्छे कॉलेजेस को नहीं जाते, जो वहां पे जाते हैं, उनकी हम हिम्मत बन सकते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को मैं इत्तला देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आएगा और आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसकी फौरी तौर पे रिव्यू मीटिंग ले। शुक्रिया। स्पीकर साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब जो भी उनकी बातें रखी है मैं नोट किया हूं और इंशाल्लाह हम सीरियसली इसके ऊपर गौर करेंगे और रिजल्ट भी देंगे। AIMIM मलकपेट से रुकने असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि तलबा के लिए फीस रीएम्बर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप की ज़ेर इल्तिवा रकूम को फौरी तौर पर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों में ताख़ीर के बायस गरीब और मुतवासित तबके के तलबा को शदीद माली मुश्किलात का सामना है और कई तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बिला ताख़ीर रकूम की अदायगी को यकीनी बनाएं ताकि तलबा यकसुई के साथ अपनी तालीम जारी रख सकें और आला तालीम के मौके से महरूम ना हो। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है। ना सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप बल्कि पोस्ट मैट्रिक रिएम्बर्समेंट भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी तरफ से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो रही है, ना पेरेंट्स को तकलीफ़ हो रही है, बच्चों के सर्टिफिकेट स्कूल्स और कॉलेजेस से उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम इदारे बंद होने की कगार पर आकर रुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से जब तक फीस रिएम्बर्समेंट उनको इदारों को कॉलेजेस को नहीं आता, वो अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे सक रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर फ़ी रिएम्बर्समेंट और ओवरसीज स्कॉलरशिप के जो भी अमाउंट्स है उसको रिलीज़ किया जाए। ऐसा ना हो कि कई कॉलेजेस बंद हो जाए और कई बेरोजगारियां पैदा हो जाए, असातिज़ा के, टीचर्स के, लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के नौकरियां ख़तरे में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे और इमीडिएट तौर के ऊपर ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फ़ी रिएम्बर्समेंट है, जो भी है ये डिसबर्स करे, ताकि जो स्टूडेंट्स, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स और कॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ, हर कोई इसकी वजह से परेशान है। बहुत बड़ा इसका मसला पैदा होने का डर है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये तमाम चीज़ों का हल करें। शुक्रिया। श्री अजहरुद्दीन गारू, मंत्री गारू। नोट कर लिया मैं। AIMIM याकुतपुरा से रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेहराज ने तेलंगाना असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो माह रमज़ान से कबल तमाम ज़रूरी इंतजामात को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने खास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में सफाई व सुथराई से मुताल्लिक़ मसाइल की निशानदही करते हुए कहा कि गंदगी, नकासियाब और सैनिटेशन की नाक़िस इंतजामात शहरियों के लिए संगीन मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत और GHMC फौरी इक़दाम करते हुए इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये मौका दिया है। सर, मेरा सवाल सीधे ये है कि GHMC के अंदर सैनिटेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा सर। यहाँ तक कि ना गार्बेज लिफ्टिंग प्रॉपर है सर, ना स्वीपिंग प्रॉपर है सर।
क्योंकि आप देखते हैं कि स्वीपिंग स्टाफ कम की तरफ से एक लोकेलिटी के अंदर बाइलेंस में वीक 10 डेज में एक बार स्वीपिंग हो रही सर। तो मेरा आपके जरिए से सीधा मिनिस्टर साहब को यह सवाल है कि सर आज हम जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सराउंड एरिया बढ़ा रहे जरूर है सर, मगर जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसके अंदर ना प्रॉपर सैनिटेशन लिफ्टिंग है सर गार्बेज की, ना स्वीपिंग बराबर है। उसके अलावा सर स्ट्रीट लाइट का भी सेम पोजीशन है सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत को यह कहना चाहता हूं, इसके ऊपर न सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है, पब्लिक के हेल्थ का भी ख्याल रखने की जरूरत है सर। और एक अहम बात यह है सर, आने वाला टाइम 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू हो रहा है सर। हमेशा हुकूमत ने इसकी मीटिंग रखती है सर। मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं, आपके मीटिंग थोड़ा अर्ली रखिए सर, अर्ली रखने के बाद ताकि रमजान के काम आने से पहले हो और हमारे जो जगने की रात है, शबे मेराज, शबे बारात और शबे कदर, उसका भी इंतजाम करना सर। और ग्रेवयार्ड्स की साफ सफाई बेइंतहा जरूरी है सर। मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर खास तौर से तवज्जो दीजिए, क्योंकि कमिश्नर जीएचएमसी साहब भी यहां पर मौजूद है। मेरी आपके जरिए से उनको भी रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తగు విధమైన గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు అధికారులకు కూడా ఆదేశించడం జరుగుతుంది. साबिक वजीर और बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली में हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन, पुलिस एहलकारों और रिटायर्ड मुलाजमीन के जेर इल्तिवा PRCDA सरेंडर लीव्स और दिगर बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाएं। जीरो आवर के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद ना तो PRC जारी की गई और ना ही मुलाजमीन को बकाया DA अदा किया गया, जबकि मुल्क में कहीं और इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी मंशूर में वादे के बावजूद एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कैम और ओल्ड पेंशन स्कीम पर अमल नहीं किया गया, जिससे लाखों मुलाजमीन शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला हैं। साबिक वजीर ने पुलिस महकमा में भी सरेंडर लीव्स TADA और हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि 1 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार मुतासिर हो रहे हैं। ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి మనోవేదనతో ఆవేదనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 6 DAలు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా PRC అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 2 సంవత్సరాలైనా ఇంతవరకు PRC ఇయ్యలేదు. ఉద్యోగులందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నారు వెంటనే PRC విడుదల చేయాలని. గతంలో కేసీఆర్ గారు 43-39% PRCని మా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 2 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నాయి కనుక వాటిని విడుదల చేయండి. ఇలా పోలీసులు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనలో ఉన్నారు. పోలీసులకు ఉండే ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ కూడా బంద్ చేసిండ్రు. మీరు ₹1,00,000కే పరిమితం చేసిండ్రు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఆరోగ్య భద్రతను పునరుద్ధరించండి, గతంలో మాదిరిగా కార్పొరేట్ వైద్యం పోలీసులకు అందించాలని చెప్పి కోరుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో తక్షణమే మేము ఉద్యోగులకు PRC ఇస్తాము, పెండింగ్ DAలు ఇస్తాము, బకాయిలు ఇస్తాము, OPS తెస్తామని మాట ఇచ్చి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 ఏళ్లైనా అమలు చేయకుండా మోసం చేస్తూ ఉంది. జరిగిన అన్యాయం ఇప్పటికే చాలా జరిగింది. తక్షణమే ఇప్పటికైనా ఉద్యోగులకు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు, పోలీసులకు ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి మేలు చేయండి అని చెప్పి మీ ద్వారా ఆర్థిక మంత్రి డిప్యూటీ సీఎం గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में जुबली हिल्स के नौ मुंतखब कांग्रेस रुकन असेंबली नवीन यादव ने अपने पहले खिताब में हल्के के अवामी मसाइल उजागर किए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इन्हें मौका फराहम किया और जीत को यकीनी बनाया। नवीन यादव ने कहा कि वो वज़ीर आला की रहनुमाई और मुशावरत में कृष्णा नगर के ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में नक्कासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने और जुबली हिल्स के दिगर इलाकों में हाई टेंशन बिजली की तारों के खतरात का मुस्तकिल हल निकालने के लिए अनथिक मेहनत करेंगे ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। वाज़ेह है कि ये ज़िमनी इंतखाब BRS के रुकन असेंबली मागंडी गोपीनाथ की वफात के बाद कराया गया, जिसमें कांग्रेस के नवीन यादव ने कामयाबी हासिल की, जबकि BRS ने मागंडी की अहलिया को मैदान में उतारा था जो शिकस्त खा गई। ఈ అవకాశాన్ని స్వాగతిస్తూ మా ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించి సభకు పంపించడం వల్ల అందరికీ కూడా మనసారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, సార్
ఈ సభలో మాట్లాడే ప్రతి మాట ప్రతి అంశం కూడా ప్రజల జీవితాలతో ముడిపడింది కాబట్టి సభ గౌరవిస్తూ సభ మర్యాదలను పాటిస్తూ ముందుకు సాగుతానని, మా ప్రాంత ప్రజల యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో సలహాలు సూచనలతో మా ప్రాంత ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ వారి సంక్షేమ అభివృద్ధి కోసం సాగుతాను ముందుకి. అదే నా లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతానని. అట్లానే మా ప్రాంతంలో కృష్ణానగర్ అనే ఒక ఏరియా ఉంది సార్. దాదాపు 30-40 సంవత్సరాల నుండి అక్కడ వర్షాకాలంలో చాలా వర్షం వల్ల చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ప్రజలు. మా మంత్రులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినారు. అది పని కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది, తొందరగా పూర్తి చేయాలని ఒకటి సభ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను. అట్లానే హై టెన్షన్ లైన్స్ మా ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోయినటువంటి విషయం పూర్వంలో, అది కూడా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినారు. అది కూడా అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ ఫాస్ట్గా చేయిస్తే ఆ ప్రాంత ప్రజలు సురక్షితంగా ఉంటారనేది ఒక సందేశం మీ ద్వారా అందిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అండ్ చాలామంది పిల్లలు కూడా అక్కడ చదువుకొని 10th తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వల్ల చదువుకోలేని పరిస్థితి. సో అక్కడ ఒక ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా వస్తే బాగుంటుందని ఒక అభిప్రాయం తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు థ్యాంక్స్. तेलंगाना असेंबली के पहले दिन बालकोंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने भीमंगल म्युनिसिपालिटी के तरक्याती मंसूबों पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। उन्होंने बताया कि साबिका हुकूमत के दौर में मंजूर शुदा 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है और अमले की अलॉटमेंट भी हो चुकी है, मगर मौजूदा हुकूमत के इख्तियार में गुज़िश्ता 2 सालों से कोई अमली काम नहीं हुआ। प्रशांत रेड्डी ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से दरख्वास्त की कि ज़ेरे इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी की जाए और हॉस्पिटल की तामीराती काम के लिए बाकी 5 करोड़ रुपए जारी किए जाएं ताकि गरीब आवाम को इलाज की सहूलत मैसर हो। इसके साथ ही उन्होंने भीमंगल म्युनिसिपालिटी में बनाई गई मरबूत वेज और नॉन वेज मार्केट की तामीराती कामों का जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि सड़क पर सब्जी मंडी लगने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर सेहत ने इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది నా నియోజకవర్గంలోని భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి విషయం అధ్యక్ష. ఇక్కడ గత ప్రభుత్వంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి మంజూరు చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. అయితే ఒక 80% వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారిని దయచేసి కొద్దిగా వినాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. 100 పడకల ఆసుపత్రి గత ప్రభుత్వ హయాంలో మంజూరైంది. అప్పుడే ఒక 80% వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయితే ఈ హాస్పిటల్కు స్టాఫ్ అలాట్మెంట్ కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 2 years నుంచి అధ్యక్ష పనులు జరగట్లేదు. అయితే 30 కోట్లు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టబడింది. 35 కోట్లతో మంజూరు అయితే 30 కోట్లు ఖర్చు పెట్టబడింది. ఇంకొక 5 కోట్లు అంటే పాత ఖర్చు పెట్టిన దాంట్లో బిల్స్ ఇవ్వడం, ఇంకొక 5 కోట్లు దానికి విడుదల చేస్తే అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 2 years నుంచి స్టాఫ్ కూడా ఎక్కడెక్కడ వేరే హాస్పిటల్స్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने अपने हलके में ममनुआ चाइनीज मांझे के फरोख्त के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसकी इत्तला देने वाले के लिए 5000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने खबरदार किया कि चाइनीज मांझा इंसानों और परिंदों दोनों के लिए निहायत खतरनाक है और इसकी फरोख्त या इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दानम नागेंद्र ने कहा कि जो भी शख्स चाइनीज मांझा फरोख्त करते हुए पाया गया, इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जबकि इत्तला देने वाले अफराद की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा और मुसद्दिका इत्तला पर 5000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। మనవి చేస్తా, స్పెషల్లీ నా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎక్కడన్నా కానీ ఏదన్నా షాప్లో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం సంబంధించి చైనా మాంజా అమ్మినట్టు మాకు దృష్టికి తీసుకొస్తే తెచ్చిన వారిని పట్టించి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ పేరు మేము కాన్ఫిడెన్షియల్గా పెట్టి వారికి 5000 రూపాయల మేము వాళ్ళకు గిఫ్ట్ ఇస్తాం. చైనా మాంజా ఎక్కడ కూడా మన నియోజకవర్గంలో, హైదరాబాద్ సిటీలో, తెలంగాణలో అమ్మొద్దని మా డిమాండ్. కానీ మా నియోజకవర్గం నుంచి వెళ్ళాలని ఎక్కడెక్కడ చైనా మాంజా మన నియోజకవర్గంలో చిన్న షాపులో అయినా పెద్ద షాపులో అయితే మా దృష్టికి తీసుకురండి. నేను పోలీస్ ద్వారా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టిస్తాను. మీకు 5000 రూపాయల గిఫ్ట్ మా యొక్క పార్టీ తరఫున, మా నియోజకవర్గం యొక్క నాయకుల తరఫున నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను.
ఎవరి సమాచారం తీసుకొచ్చి ఇస్తే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తాం. చైనా మాంజా ఎక్కడ అమ్మినా మాకు తీసుకురండి. नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने क्रिसमस और तातीलाती हफ्ते के दौरान अवाम की गैर मामूली तवज्जो हासिल की है, जहां 23 से 28 दिसंबर 2025 के दरमियान 1 लाख से ज़ायद सयाहों ने जू पार्क का दौरा किया। इंतजामिया के मुताबिक तातीलात के मौके पर बेहतर अवामी सहूलतें, जानवरों से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम्स और नई अक़साम के जानवरों की शमूलियत ने शायकीन की बड़ी तादाद को अपनी जानिब राग़िब किया। हाल ही में जू पार्क में ज़ीब्रा, मेरकेट और सरोलकेट जैसे नायाब जानवरों शामिल किए गए हैं, जो बच्चों और ख़ानदानों के लिए ख़ास कशिश का मरकज़ बने हुए हैं। हुकाम का कहना है कि सफाई, सिक्योरिटी और रहनुमाई के बेहतर इंतजाम के बायस सयाहों ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि आने वाले दिनों में मज़ीद सहूलतों और तालीमी सरगर्मियों के ज़रिए जू पार्क को एक मिसाली तफरीही व तालीमी मरकज़ बनाने की कोशिश जारी है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मीडिया प्लस में एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत रियासती सदर M.A. माजिद ने की, जिसमें रियासती और ज़िले अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पुराने जियो नंबर 239 को मनसूख करके नया जियो नंबर 252 जारी करने के फैसले पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया और इसके मुमकिना फ़वाइद व नुक़सानात पर रोशनी डाली गई। शुरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि जियो 252 सहाफ़ियों के मुफाद के ख़िलाफ़ हैं, जिसे फेडरेशन सख्ती से मुस्तरद और मज़म्मत करती है और सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरकान असम्बली और हुकूमती अहदेदारान से मौसर नुमाइंदगी की जाएगी। इजलास में ज़िले सतह पर फेडरेशन से वाबस्ता सहाफ़ी को एक्रेडिशन कमेटी में रुकन मुंतखब करवाने के इक़दामात, सहाफ़ियों के लिए मजबूत ट्रेड यूनियन के क़याम और तमाम ज़बानों के सहाफ़ियों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने पर भी गौर किया गया। इजलास का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत और नात शरीफ से हुआ। इजलास में फेडरेशन के दिगर रियासती ज़िम्मेदारान मोहम्मद मोहसिन, खलील फरहाद, खालिद शहबाज, मोहम्मद शफ़ी व दिगर ने भी शिरकत की। शहर और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्द लहर का सिलसिला आइंदा 2 से 3 दिन तक बरकरार रहने का इम्कान है, जिसके बायस हैदराबाद में कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है और आवाम को खासी ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में दर्जे हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड हो रहा है। हवा में 52% नमी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक हवाएं ना होने के सबब तेलंगाना भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब रहने का इम्कान है, जिसके नतीजे में धुंध, कोहर आलूद आसमान, दिन के दर्जे हरारत में कमी और रात के वक्त शुमाली हिंद जैसी सर्द लहर की कैफियत बरकरार रह सकती है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को एहतियात तदाबीर इख्तियार करने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। ताहम 1 जनवरी के बाद सर्द लहर से बतदरीज राहत मिलने की तवक्को है, जिसके साथ ही गुज़िश्ता 25 दिनों से जारी सर्दी के तवील सिलसिले के टूटने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में अमन और अमान की बरकरारी के लिए मिशन चबूतरा के तहत चादरघाट पुलिस ने बड़े पैमाने पर अचानक तलाशी और मुआयना मुहिम अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान चादरघाट, आजमपुरा, वाहिद नगर और ओल्ड मलकपेट के इलाकों में वाक़े होटलों और रेस्टोरेंट्स की बारीक बीनी से जांच की गई, जिसका मकसद गैर कानूनी अशिया, नोकीले हथियारों और मुश्तबा सरगर्मियों की रोकथाम था। पुलिस ने होटल व रेस्टोरेंट मालिकान को सख्ती से हिदायत दी कि वो अपने इदारे रात 1 बजे से कबल बंद करें और वाज़े किया कि मुकर्ररा औकात के खिलाफ वर्जी या किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही रात के औकात में शराब नोशी और तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से इज्तनाब की हिदायत भी दी गई है। मुहिम के दौरान पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जबकि शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और जुराइम पर मौसर काबू पाना है। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा इलाके में वाक़े 8 मंजिला अल्पाइन हाइट्स रिहायशी अपार्टमेंट में इतवार की शाम गैस सिलेंडर फटने के नतीजे में अचानक
शदीद आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने के साथ ही इमारत से घना धुआं उठता हुआ नजर आया और बुलंद शोलों ने मकीनों को दहशत ज़दा कर दिया, जिसके बाद जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर लोग घबराहट में अपने घरों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई और फायर फाइटर्स ने काफ़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर अपार्टमेंट की बरक़ी सप्लाई मुनक़ता कर दी, जिसके बायस लिफ्ट्स बंद हो गई और बुजुर्ग मकीनों को सीढ़ियों के जरिए नीचे उतारने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पुलिस की इब्तिदाई जांच के मुताबिक ए ब्लॉक की फ्लाइट नंबर 502 में जो उस वक्त मखफूल था, गैस सिलेंडर फटने के सबब ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में वाक़े क्विक एरना पब पर इतवार के रोज ईगल टीम ने अचानक छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान मंशियात का इस्तेमाल करते हुए 8 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 14 अफराद के ड्रग्स टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 8 के नताइज मुस्बित पाए गए। नए साल के तकरीबात के पेश नज़र क्विक एरना पब में यूक्रेन के मशहूर डीजे आर बैट्स के साथ एक कंसर्ट का इनेकाद किया गया था, जिसके दौरान साइबराबाद पुलिस के इश्तिराक से ईगल टीम ने मुख्तलिफ पब्स और तफरीही मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस हुकाम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान मंशियात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुकदमात में मजमूई तौर पर 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 गैर मुल्की ख़वातीन समेत 17 सारिफीन शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुलज़िमीन के कब्जे से 68 ग्राम कोकीन, 50 ग्राम MDMA और 382 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जबकि पुलिस ने वादे किया है कि शहर में मंशियात के खिलाफ मुहिम मजीद सख्त की जाएगी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। बांग्लादेश का अमन भारत की सलामती से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में तशद्दुद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सख्त मजम्मत, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। तेलंगाना असेंबली विंटर सेशन का आगाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सियासी शाइस्तगी का मुजाहरा, KCR से मुलाकात करके कायम की जमहूरी इक़्तिदार की मिसाल, इजलास 2 जनवरी तक मुलतवी। तेलंगाना असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने डॉक्टरों की कमी दूर करने और बच्चों के लिए MRI मशीन फौरी फराहम करने का किया मुतालबा। जाफर हुसैन ने रमजान से कबल सफाई, नकासी, आब और सैनिटाइजेशन के मसाइल फौरी हल करने पर दिया जोर। चाइनीज मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात, इत्तला देने वालों के लिए 5000 रुपये इनाम। दानम नागेंद्र ने इख्तियार किया सख्त मौकूफ। क्रिसमस व तातीलात के दौरान जू पार्क में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने जू का दौरा करके जानवरों का किया मुशाहिदा। जू पार्क को मजीद तालीमी व तफरीही मरकज बनाने इक़दामात का हुक्काम का ऐलान। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई।
مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا، عرفات و مزدلفہ کے اے سی VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔